Hello, assalamu alaikum and good afternoon and welcome to another edition of the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And we have another big game here today for Pakistan. Pakistan colliding with South Africa. That's a game that's coming up, but इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, let me bring into the conversation with my four very special guests that I have in the Pavilion. Four former Pakistani captains, four outstanding minds of the game of cricket, four legends, four icons, four gentlemen who've served Pakistan and the game of cricket really well. First up, I've got one of the finest middle-order batsmen, great finisher of the game, a super fielder, a super fit, Shoaib Malik. Good afternoon and assalamu alaikum, Shoaib. Good afternoon, good morning, assalamu alaikum. With that, I've got the one man who'd hold together the entire Pakistani batting order when the batting order would go into disorder. The most dependable of them all, the most successful test captain in Pakistan's test cricket history. I've got the full of mandi, Misbah. Assalamu alaikum and good afternoon, Misbah. I believe mandi was really good last night, eh? अकेले के लिए खाई हजम तुझे नहीं होगी फिर भी ये याद है मेरी बद्दुआ है तू हजम हो गई हजम Sorry, that's private conversation. Good to have you here, brother, like always. Next up, 8 cricket fingers, 2 straight thumbs. I was going to say 5, but 2 straight thumbs. One of the finest wicket keepers that we've had. Also captain Pakistan, man of crisis, great runner between the wickets, and the silver fox of the Pavilion. I've got Mr. Moin Khan. Good afternoon and assalamu alaikum. Good afternoon, good morning, assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. हल्का All right. 178. पूछ रहे थे आप पहले वैसे अब के मेरा हल्का कौन सा है 178 good on you Moin. And finally the cricket royalty himself शहनशाह है cricket के the royalty himself, the king of all all-rounders, the sultan of swing, our very good friend and the leader of this Hamnawa group, Wasim Akram. Wasim, good afternoon and welcome and thank you for switching off the phone. Good afternoon. Switch off phone silent पे कर दिया यार. वो मोइन को पहले आप कह रहे थे कि हल्का कौन सा है, मुझे तो लग रहा है ये पिंडी फुफे नहीं बैठे होंगे देगा थे. चाचा जी मेरे प्याले जरा बोटियां Yeah, ouch. आप लोगों का पुराना मजाक है. हालांकि मुझे अच्छी तरीके से मैंने बुरा बिल्कुल नहीं माना. नहीं मुझे पता है आप मान भी नहीं सकते. All right folks, welcome and good afternoon and it's a special day. We are all very very hopeful today. Pakistan is going to bounce back and get some points on that table. But before we talk about that, let's talk about what we had last night. Yesterday was a very bad day for English cricket apparently because England were dismissed by Sri Lanka for 156. याद रहे कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और बदकिस्मती से इंग्लैंड की टीम 33.2 ओवरों में मुकम्मल तौर पे they were all out. Great bowling figures there by Sri Lanka. Sri Lanka in response 160 for 2. Look at that partnership right on top. Nisanka and Samara Vikrama. They did really, really well. And Willie picking up 2 for 30. Sri Lanka won that by 8 wickets. इसके बारे में अभी बात करेंगे. But let's take a look at the points table. इसके साथ ही आपको points table भी दिखा देते हैं. इस वक्त points table की सूरत हाल क्या है? ये रहा आपका points table ICC Men's World Cup 2023 का. India sitting right on top with the 10 points. Now that's them. They're unstoppable right now. South Africa now come to number 2, but look at South Africa's net run rate, 2.37, incredible. New Zealand slipped to number 3 now, and after that is Australia at number 4. Sri Lanka move up to the 5th position, pushing Pakistan down to the 6th. Afghanistan on 7th, Bangladesh 8th, England 9th, and Netherlands on the 10th position. याद रहे कि टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल्स खेलेंगी और बॉटम की 2 टीमें जो हैं उनको अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स जो हैं वो शायद खेलने पड़ेंगे. So we'll talk more about that, but let me bring this conversation to you, Wasim. सबसे पहले कल नासिर हुसैन ने स्काई अपने जो उनका जो चैनल है ब्रिटिश चैनल उसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया ग्राउंड से, वहीं पे स्टेडियम में वो खड़े थे और बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बातें की. एक बात उनकी ये थी कि ये हम जो है T20 को ब्लेम ना करें, इंग्लैंड के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ब्लेम ना करें, काउंटी क्रिकेट को ब्लेम ना करें, हंड्रेड्स को ब्लेम ना करें. उन्होंने कंपैरिजन किया कि विराट कोहली एंड रोहित एंड ऑल दैट ये भी तो T20 खेलते हैं, तो ये T20 से ही सीख के अपनी गेम जो है वो करते हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि आप एक्सक्यूजेस ना बनाएं, ये जो है सरासर प्लेयर्स की
की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. ऑल द ब्लेम दैट ही इज सेइंग, नॉट द ब्लेम रादर, ही इज सेइंग कि ये सारे आउट ऑफ फॉर्म है या दे हैव जस्ट नॉट बीन इन द राइट निक, इट्स जस्ट अ बैड पैच फॉर देम. बट ही इज सेइंग यू कैन नॉट ब्लेम द सिस्टम, यू कैन नॉट ब्लेम द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, you cannot blame you. If you anybody that is responsible for this, it is the players themselves. What do you think? I saw that clip of his on Sky. He said कि जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, जब 50 ओवर वर्ल्ड कप 2019 में हम जीते, वर्ल्ड चैंपियन बने, तब किसी ने कोई बात नहीं की. अब जब हम क्वालिफाई नहीं करते, फॉर इंस्टेंस, देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग अननेसेसरी अबाउट द काउंटी स्ट्रक्चर, एंड प्लेयर्स आर प्रोफेशनल एंड दे आर प्रोफेशनल. दैट्स देयर bread and butter. They live for it. They have no other job. They're no amateur anymore. So yes, they are professional. They should be able to adapt themselves according to the format. Format कोई excuse नहीं होना चाहिए. I agree with Nasir Hussain 100%. Yeah, and also another thing, मोइन जो नासिर ने बोली उस इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा कि मैं इस टीम को चेंज करूँगा. मतलब मैं सुन रहा हूँ कि फिल सॉल्ट को होना चाहिए था और फ्लांग को होना चाहिए था और जैक को होना चाहिए था. कहते मैं इन लड़कों को चेंज नहीं करता अगर मैं खुद भी होता. लेकिन एक चीज़ जो ऑनेस्टली इन लोगों को रिप्लाई करनी चाहिए कि इनके आप ड्रेसिंग रूम में इस वक्त जाके इंग्लैंड के इनसे पूछे कि अपने दिल पे हाथ रखें. दीज आर हिज वर्ड्स, माइंड यू, दीज आर नॉट वर्ड्स दैट आई हैव कम अप विद. ही सेड आस्क देम टू पुट देयर हैंड ऑन देयर हार्ट एंड टेल देमसेल्व्स ऑनेस्टली इफ दे बिलीव दैट दे आर इन द राइट निक, if they're in the right form, and if there's nobody else to blame but then they themselves. What do you think about it? He says no need for any changes. नहीं बिल्कुल. Just एक और जुमला मैं उसमें ऐड कर दूं क्योंकि मैंने अभी आने से पहले सुना है तो फ्रेश है सब कुछ मेरे दिमाग में. Last thing he said, these boys, these 11 perhaps are some of the finest white ball cricketers that will be remembered in history for white ball cricket. ये सब कुछ उन्होंने बोला. I think बिल्कुल ठीक बोला है और थोड़ी सी कमिटमेंट लेवल कम नज़र आया. और जब भी आप देखें आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप एज प्लेयर, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर जो सही प्रोफेशनल होता है वो किसी को ब्लेम करता है. या सबसे पहले आप अपनी असेसमेंट करते हैं. इसी बात पे उन्होंने बोला कि अपने दिल पे हाथ रख के तमाम प्लेयर्स ये बात बोलें कि वो सही निक में है कि नहीं है. जब आप नेशनली फॉर्म में नहीं होते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं आपको. आई थिंक फोकस नहीं है, कमिटमेंट लेवल कम है. इतना बड़ा टूर्नामेंट था, हर आदमी के अपने एक पर्सनल, हर प्लेयर के अपने गोल्स होते हैं. आई थिंक वो जो कमिटमेंट लेवल है ना वो इंग्लैंड में नज़र नहीं आया. टैलेंट वाइज जैसे नासिर ने बोला है, नो डाउट ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा इन तमाम वाइट बॉल प्लेयर्स को, बिकॉज कि प्रीवियसली इन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया. एंड इवन हमारा पैनल जब ये स्टार्ट हुआ था, हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उस वक्त सबने बड़ा प्रेज़ किया था कि इंग्लैंड से बचना होगा टीमों को. और इंग्लैंड वो टीम है इस वक्त जो सेकंड लास्ट नंबर पे इस वक्त पॉइंट टेबल्स के अंदर खड़ी हुई है, इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स. और सारे प्लेयर्स नेशनली जो कमिटमेंट लेवल है वो इसी वजह से कम नज़र आ रहा है. एक कि वो जिन कंडीशंस में उनको खेलने का मौका मिला, आया कि उन्होंने प्रिपरेशन अपनी की थी, नहीं की थी आने से पहले वर्ल्ड कप में. हमने अपने बड़ों से सीखा है, जावेद भाई, इवन बहुत सारे ऐसे बैट्समैन थे जब ऑस्ट्रेलिया स्पेशली जा रहे होते थे या साउथ अफ्रीका जा रहे होते तो स्पेशल प्रैक्टिसेस करते थे, स्पेशल ड्रिल्स करते थे विद टेप बॉल कह लें, बाउंसर्स की प्रैक्टिस करना, जो टेनिस बॉल होती है उसको गंजा करके उसके बाल चलता के गीला करके उसको स्पीड वर्क करना. तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त रिसोर्सेज कम होते थे. अब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो चुके. तो मेरा ख्याल है कि शायद कहीं ना कहीं वो जो कमिटमेंट लेवल और वो जो प्रिपरेशन थी इस वर्ल्ड कप की इंग्लैंड ने, वो तमाम प्लेयरों ने शायद थोड़ी सी कम की है, जिसकी वजह से ये डिबैकल हुआ है जहां उनको मुश्किलात आई इन कंडीशंस में खेलने की अगेंस्ट स्पेशली स्पिनर्स. कल भी साउथ अफ्रीका जब हम बात कर रहे थे तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था कि श्रीलंकन बॉलर्स के खिलाफ ये स्ट्रगल करेंगे. आई थिंक लैक ऑफ प्रिपरेशन. Now let me bring this conversation to you, Shoaib. आपने सुन लिया जो मैंने भी बताया, नासिर हुसैन ने क्या कुछ बोला. उन्होंने कहा ये लड़कों की सोलली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ना सिस्टम पे आप सवाल उठा सकते हैं, ना कितनी ज़्यादा T20s खेलें और ODIs नहीं खेलें. तो फिर क्या ये बात हमारी पाकिस्तान टीम पे भी नहीं लागू हो सकती कि हम खाम में जो है वो सिस्टम को हम लोग यहाँ पर बैठ के कहते हैं जी PCB ने ये कर दिया, लोग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का यूँ है मसला, इसका यूँ है मसला, उसका यूँ मसला है. एंड वेयरएज के नो, नासिर हुसैन बिलीव्स इट शुड बी द प्लेयर्स दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल. देखें, व्हाट नासिर हुसैन सेड एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, एक चीज़ ज़रूर ये कर सकते थे इंग्लैंड वाले कि जो उनको करनी चाहिए थे जस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जैसे मिसबा भाई ने भी शुरू में कहा था कि वो मैसेज वॉज सेंट नीचे तक उनके सिस्टम में कि 400 हाउ टू स्कोर 400 रन्स इन एन ODI गेम. तो वो मैसेज तो उन्होंने भेजा, ठीक है, वो
क्लैरिफाई कर दिया, बट अब जो वे आउट निकालना था वो निकालना था प्लेयर्स ने। वो प्लेयर्स ने ये वे आउट निकालना था कि जो इनको प्रॉब्लम भी हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, ये थोड़ी सी कंडीशंस जो है वो ऐसी हैं कि आप फ्रॉम द बॉल 1 टिल द 50th ओवर सेम उसमें नहीं खेल सकते। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की एग्जांपल ज़रूर लेनी चाहिए। वो क्या करते हैं, पहले 20 ओवर्स वो ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग नहीं खेल रहे, ये शुरू से T20 खेलना चाह रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो कन्वेंशनल क्रिकेट नहीं खेली। जो बेस जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उस चीज़ में लैक कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मैसेज मिलता है टीम मैनेजमेंट से, लेकिन आपने आगे से वे आउट या जो उसका प्रोसेस है वो प्लेयर नहीं उसका सोल्यूशन निकालना। आपने मिसबा एक बड़ी अच्छी आज बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो जितनी टीमें जो हु ट्राई टू गो हार्ड इन द फर्स्ट 10 overs and then lose 2-3 wickets, they struggle. But आपने कहा कि जो असल पावर प्ले है वो तो 10वें से 40वें ओवर तक के बीच में जो 30 ओवर हैं असल में तो वो खेलने। प्लीज इलैबोरेट दैट एंड हाउ दैट अप्लाइज टू द इंग्लिश टीम। देखें, जितनी भी टीमें आप देखें, साउथ अफ्रीका की एग्जांपल सबसे बड़ी एग्जांपल मलिक ने दी है कि वो ये नहीं करते, 400 कर रहे हैं लेकिन 400 राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल नहीं होता 400। वो देखते हैं कंडीशन को, बॉल कैसे हो रहा है, थोड़ा सा बेस बनाते हैं और फिर चूज़ करते हैं बॉलर्स, कौन सा बॉल, कौन सी हमने यहाँ पे बाउंड्रीज, कहाँ पे हम इसको जो है वो अंडर प्रेशर कर सकते हैं टीम को, उसको उस तरीके से लेके चलते हैं। फिर बीच के ओवर्स में आके वो कहीं ना कहीं T20 खेलते हैं, T20 के बाद आखिरी 10 ओवर में T10 खेलते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इंग्लैंड जो सबसे बड़ी चीज़ एक नज़र आ रही है, जो हम कह सकते हैं दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस साइड। जिस वनडे क्रिकेट की भी अगर बात करें, वाइट बॉल क्रिकेट की, सारे परफॉर्मर्स हैं, बने हुए प्लेयर हैं, इन कंडीशंस का भी पता है, मोस्टली दे प्ले इन IPL, हर पिच का भी पता है। बट दे कुड नॉट फाइंड द फार्मूला ऑफ विनिंग एंड स्कोरिंग रन्स हियर। वो फंसे हुए कि कैसे करना है इस चीज़ को। उसकी एक ये भी वजह हो सकती है, जब आप टीम चाहे सुपरस्टार्स हों लेकिन वो टीम कॉम्बिनेशन अभी सेट नहीं है कि कहाँ किसका क्या रोल होगा, ये भी वजह हो सकती है। All right, thank you, Misbah. And with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we're getting closer to Pakistan versus South Africa. Don't go away. Keep watching A Sports, our ARY Zap app, and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. Excuse me. Welcome back to the Pavilion. It's another day at the ICC Men's World Cup 2023. Now today we have another very special game. It's Pakistan versus South Africa. Match ident आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. This is the game that's going to happen today. We're going to take you to Chennai. And it's going to start at 1:30 p.m. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah, मोइन खान एंड वसीम अकरम। और बात करते हैं आज के इस टाकरे की। बड़ा मुकाबला है, हेड टू हेड काउंट भी देख लेते हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की। पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका हैव प्लेड ऑल टुगेदर 5 मैचेस। साउथ अफ्रीका हैज़ वन 3, पाकिस्तान हैज़ वन 2 ऑफ देम। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान हाउएवर इज वन द 2 रीसेंट, जो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में मैचेस हुए थे वो पाकिस्तान जीता था, 2019 में लॉर्ड्स में और ऑकलैंड में 2015 में, और 2021 में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज भी बीट की थी साउथ अफ्रीका में 2-1 से। So interesting there. Now let me start with you, Misbah, on this. How do you see the match today? Is this a pressure game for both sides, या एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर है और दूसरी पे कम? क्लियरली एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर है। पाकिस्तान की मस्ट विन गेम है, वरना हमारे पास कोई चांस नहीं है। साउथ अफ्रीका कॉन्फिडेंट है, अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, उनकी फास्ट बॉलिंग, उनका बैटिंग डिपार्टमेंट मेरे ख़्याल में पूरी जो वर्ल्ड कप में जितनी भी बैटिंग है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी फॉर्म अच्छी है, फिर उनके हर बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, विकेट्स ले रहे हैं, तो पॉइंट्स टेबल पे भी वो ऊपर हैं। क्लियरली वो कॉन्फिडेंट होंगे इस मैच में, बट दैट डजंट सजेस्ट कि पाकिस्तान के पास चांस नहीं है। आप रिसेंटली अगर आपकी फॉर्म अच्छी हो, किसी टीम को आपने हराया हो, कल के मैच में हमने देखा श्रीलंका, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, कहीं ना कहीं अंदर बिलीव होती है कि हमने इस टीम को हराया हुआ है, तो वी कैन बेसिकली डू दैट। तो पाकिस्तान के पास ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम जीत सकते हैं इनसे। और एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है पाकिस्तान को भी कि अगर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के अगेंस्ट फंस सकती है तो वाई कांट वी डू दैट। सो ये एक पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। एक चीज़ तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। हमें अगर बिल्कुल जितने भी हमारे लिंक्स हैं, जो जितने भी लोग हैं,
चाहे वो बैट्समैन है बॉलर हैं, उनको अपना अपना रोल फुल पोटेंशियल पे प्ले करना पड़ेगा, तभी हम इस साउथ अफ्रीकन टीम को हरा सकते हैं। अदरवाइज़ पिछले मैच में हमने देखा है कि हमारे लिए मुश्किल हो गई थी इवन अगेंस्ट अफगानिस्तान। बेवूमा ने सॉरी जी शोएब, इसमें एक चीज़ है कि जैसे साउथ अफ्रीका है वो सेकंड बैटिंग अंडर प्रेशर करते हैं, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसकी जो बॉलिंग अटैक है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका अपने उस प्रेशर को अच्छे से डील कर जाएगा, इफ़ दे बैट सेकंड दे हैव अ बेटर चांस। लेकिन अगर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो स्ट्रगल कर रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो अगर आज परफॉर्म करता है तो वो टीम जीतेगी। तो दोनों के वो वीक लिंक्स जो है, जो वो बेहतर से डील करेगा या बेहतर परफॉर्म करेगा, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। It's not going to be an easy decision for both teams, especially toss पे, looking at their strength, क्योंकि उसके अपोजिट जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की इस टाइम जो स्ट्रेंथ है, मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा है, ज़्यादा बेटर शेप में कॉन्फिडेंस वाइज वो बैटिंग है, करेक्ट। लेकिन दूसरी टीम की स्ट्रेंथ पहले बैटिंग है, तो ट्रिकी डिसीजन है। साउथ अफ्रीका लास्ट 10 मैचों में से 9 मैच जीती है बैटिंग फर्स्ट, एंड दे स्कोर्ड अबाउट 300 प्लस रन्स 8 out of 10 games they played, so they're not going to come slow if they bat first. बिल्कुल भी नहीं। बवूमा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान जो है एक ख़तरनाक टीम है, and they can come good on any day. It's just that if they come good tomorrow, we want to be more good than them basically. So Bavuma understands the risk that the Pakistani side possesses to South Africa. I think पाकिस्तान ने ये चीज़ बहुत सालों से प्रूव करता रहा है कि ऐसे मैचेस जहाँ क्रंच मैचेस डू और डाई होती है, तो पाकिस्तान ऑलवेज दे केम बैक इन द टूर्नामेंट। तो पाकिस्तान के पास आई थिंक एक दिस इज़ द ओनली चांस, और उनको पता होना चाहिए डू और डाई सिचुएशन आ गई है इस वक्त जिस तरह मिसबा ने मलिक ने बोला है कि अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलेंगे, तो आप ऐसी टीम जो ऑलरेडी टूर्नामेंट के अंदर इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर चुकी है, उसके ख़िलाफ़ आपको जीत के ये बूस्ट मिल सकता है कि आप अगले मैचेस भी जीत सकें। आई थिंक कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आज जो पाकिस्तानी फ्लेयर है, हमेशा से हम कहते हैं कि अटैकिंग मोड में रहें। आज आपको काउंटर अटैक करना है, व्हाटएवर टॉस के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, आज हमें नहीं सोचना चाहिए ये बात कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं या पहले बॉलिंग कर रहे हैं। आपको आज ऑन स्पॉट ऑन होना चाहिए, चाहे बॉलिंग आए आपके बॉलर्स को विद इन द स्टम्प्स अटैक करना चाहिए उन जगह पे जहाँ पे उनको एटलीस्ट कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो बहुत खुला खेलते हैं, बहुत खुले शॉट्स खेलते हैं। उनको ज़रा सी भी 19-20 बॉल मिलती है, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाउंड्री के अंदर, जो कि आपके ऊपर फिर आ जाएगा प्रेशर। तो आई थिंक पाकिस्तान बॉलिंग के लिए वो स्पेशल जो मिडल ओवर्स हैं जहाँ हम बात करते हैं 11 से लेकर 40 तक, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा स्पिनर्स का। विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी होगी, वेरिएशन यूज़ करें, बिकॉज के दे आर ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल, ऑलमोस्ट एवरी बॉल, यू नो। तो यहाँ पे T20 वाली बॉलिंग मुझे ऐसा लगता है कि काम आ सकती है जब अगर आप वेरिएशंस विद इन द स्टंप्स यूज़ करें तो। विद इन द स्टंप्स, बिल्कुल। Playing 11 क्या वो उस पे आते हैं, that's down the order, we'll speak about that just in a minute. Let me bring this question to you quickly. मिसबा ने कहा कि आज टॉस जीत के बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला करना पड़ेगा कि ये बड़ा मुश्किल सा होगा। Again, I'm going to refer back to Nasir Hussain's conversation, because yesterday another very interesting thing he said in that interview is that कि actually मसला जो है सबसे बड़ा वो है टैक्टिक्स का, वो है स्ट्रेटजी का, वो है कि आप कितने अपने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली उनको यूटिलाइज करते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है वो होगा ऑन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, बिकॉज दैट विल टेक अस टू योर थिंग यू आर पॉइंटिंग आउट, देयर आर चेंजेस एक्सपेक्टेड इन पाकिस्तान टीम टुडे। No, I'm saying, is there? We don't know. We just hearing from random sources on, social media. कुछ सच हैं, कुछ गलत हैं. So I don't believe in that anymore unless it's official and authentic from the PCB, from the horse's mouth. But I suppose जैसे मिसबा कह रहा था कि बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा टॉस का, बट ऐसी सिचुएशन में एज अ टीम आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखो, और आप अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ है या बॉलिंग स्ट्रेंथ है, whatever you think it is, and make a decision according to that. Don't worry about the opposition as yet. First get your house in order, get your boys कि उनकी इस वक्त किस माइंडसेट में हैं, क्या चीज़ अच्छा करेंगे हम, हमारी बैटिंग बॉलिंग मिसबा, और आई एग्री विद मिसबा एंड शोएब बोथ, दे सेड कि राइट नाउ वे द थिंग्स आर इन दिस वर्ल्ड कप, जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है, हमारी बैटिंग इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन आवर काइंड ऑफ बॉलिंग।
All right, with that, we're going to take a break right here. But when we come back, there's more on the other side. Don't go away. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the Airwise app. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. Aap dekh rahe hain A Sports, 10 Sports, and the Airwise app, and our coverage of the ICC Men's World Cup. Today, we're taking you to Chennai, where Pakistan is going to play its game against South Africa. उसके हवाले से हम लोग अभी बात कर रहे थे. ब्रेक पे जाने से पहले वसीम, आपने बात की कि प्लेइंग 11 का क्या होगा, and you're not sure क्योंकि खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं. हमारे पास भी मुख्तलिफ नौयत की खबरें हैं. So I think पक्की खबर है. I think it is again मेरे तेना रहना जागते रहना कि हसन अली is not well. He's got fever. So Wasim will come in for Hassan Ali, you think? I don't know. What do you think? किस चीज़ की एक तो any idea? Yeah, fast bowler की जगह fast Any bowler idea why he has a fever? I mean, is it because of weather change, flu? Could be fatigue, could be viral, could be anything. This is nobody's आप में से कभी किसी ने बुखार में खेला? Yeah, quite a bit. Quite a bit. Depends what sort of बुखार. I remember in 90s, late 90s में बुखार से किसी को फर्क नहीं था पड़ता. मैंने एशिया कप के जो फाइनल जो हम 2001 में जीते थे उसमें भी खेला था. इंडिया से 102 बुखार था. फेमस कोई आपको बताना चाहूँ तो इंडिया से फाइनल था हमारा शारजा में. I think मोइन was vice captain और मैं पूरी रात I was throwing up and had a high fever. तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको फ़ोन किया. मैं कहा मोइन यार शायद कप्तानी तुझे पढ़ने मैं तो सोया नहीं हूँ अभी जस्ट वीक. जी सर कोई गल नहीं पायन तुसी ग्राउंड ते आओ ना देख लांगे. खैर ग्राउंड गया हूँ अल्लाह शरी दी उन्होंने कुछ चाय पिलाई पता नहीं क्या नींबू पानी पिलाए. आई जस्ट पहला ओवर किया जिसम विसम खुल गया. फेल्ट बिट वीक बट आफ्टर आई थिंक पहले ओवर में 2 आउट कर दिए थे. अच्छा जिसम खुलते फिर एवरीथिंग ठीक हो गया. ये उन्होंने कहा तुसी बीमारी खेले सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2021 वर्ल्ड कप जो था उसमें रिजवान को जो वायरल था वो मुझे भी था सेम. अब लोग बुखार में खेले सारे के सारे. बुखार में खेले बड़ी दफा ऐसा हुआ है बट आई डोंट नो. आपने एशिया कप का फाइनल खेला बुखार में. फॉर्चुनेटली आई गॉट मैन ऑफ द कंडीशन क्या हाउ वीक इट इज. वी डोंट नो दैट. वी डोंट नो. आई एम जस्ट सेइंग कि बुखार में होता है. एक चीज एलैबोरेट करूंगा यहाँ पे थोड़ी सी. एक तो आप अगर आपकी वेल है ना खेलने की तो आपका जो फेयर ऑफ फेलियर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है आपके अंदर से. कि आपको पता होता है यार पूरी टीम को पता है कि मुझे बुखार है. एक आपको एक सिंपैथी क्रिएट हो जाती है उससे. वो जो फेयर ख़त्म होता है ना उसकी वजह से फिर आप फुल थ्रॉटल पे जाते हैं. आप पूरी एफर्ट करते हैं. उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं जैसे हम कहते हैं ना लक जो है फेवर्स द ब्रेव. तो वो यही हो जाता है फिर कि आपकी सिम चलने शुरू हो जाती हैं चीज़ें जब आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं. तो ये एक अच्छा फैक्टर है. अगर हसन अली को इतनी ज़्यादा यानी प्रॉब्लम नहीं है और वो कमिटेड है और आज मैच भी ऐसा क्रंच है खेलना चाहते हैं. ज़रूरत भी है टीम की क्योंकि वसीम उनको रिप्लेस करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा वसीम के लिए. वसीम ऑलरेडी एशिया कप में आपने वर्ल्ड कप से पहले 1 या 2 मैचेस उनको खिलाए. उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन आपने वो ट्रस्ट उन पे ज़रूर शो किया यहाँ वर्ल्ड कप स्क्वाड में ला के. तो यहाँ पे हसन अली के लिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट मैच है. अगर वो इतना आई कांट जस्ट स्टिल गेट ओवर विद मिसबाह टॉक्स अबाउट इट अ लॉट. शोएब एज वेल. एंड आज मैं क्लिप देख रहा था पाकिस्तान के एक्स बॉलर ने ये भी कहा है कि ये वसीम अगर खेलता है या हारिस खेलता है वो नया बॉल नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा. अब आई एम सॉरी गाइज एट दिस लेवल दिस डे एंड एज यू विल बी एबल टू नो टू बॉल एट एवरी सिचुएशन कंडीशन. नया बॉल पुराना बॉल गीला बॉल ठंडा बॉल गर्म बॉल नहीं बट it's extra pressure on the skipper. इनको ये बात जो बेसिक है क्रिकेट की वो ये समझनी ज़रूरी है कि यार एक मैच ही होता है जो आपका मेक और ब्रेक होता है. अगर ये सोच के आप खेलेंगे और उसमें नया बॉल आपको करना पड़े इट्स अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. नया बॉल आपको पता है एज ए फास्ट बॉलर कितना इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको नया बॉल ना दे पुराना बॉल और वो रिवर्स भी ना हो रहा आप सोचें आपकी क्या फीलिंग होगी. अब रिवर्स क्योंकि कम हो रहा है तो नए बॉल पे ही चांस है विकेट लेने का. मैंने लैंकाशायर में जब मैं खेला 8-9 साल तो वनडे में मुझे वो हमेशा फर्स्ट स्टेज पे लेके आते थे. नेवर बोल्ड अ न्यू बॉल फॉर देम इन वनडे क्रिकेट. आई थिंक बिकॉज स्पेशली जब जून जुलाई हो जाता था ना जब सन आउट एंड ड्राई पिचेस ताकि बाय द टाइम आई कम इन तब होते भी 55 या 60 ओवर के वनडे होते थे ना नेट वेस्ट एंड BNH. तो वो लाते थे 5-5 6-6 ओवर करा के मेन बॉलर को ताकि तब तक हल्का सा रिवर्स स्विंग हो जाए. ये है कि ये हर चीज़ जो है ना हर लड़ी वहीं जाके लगती है कि जब तक आपकी प्रोडक्ट
वो नहीं आएगी प्रॉपर थ्रू प्रॉपर सिस्टम, तो यही होगा ना। आप डिफरेंट चीज़ों में आप कैसे कम्पीट करेंगे? अब आप एक अच्छा बॉक्सर है, उसको 12 राउंड्स का मैच खेलना है, अब उसने 3 राउंड्स की प्रैक्टिस की हुई है या वो रेडी है, तो वो 4th राउंड में, 5th राउंड में, 6th राउंड में क्या करेगा? तो यही हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग एक 2 मैचेस पे वो हम बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर जब जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट या क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है, वो उसके पास वो आंसर्स नहीं होते उस चीज, उस सिचुएशन के साथ डील करने। I can understand one of in our system, in our culture, one of rare talent मिल जाए उसको आप खिला दो। बट देन द साइम है, इवन जैसे हारिस आया था आउट ऑफ द ब्लू, टेनिस बॉल से ट्रायल हुए लाहौर कलंदर्स के, देन दे पिक्ड हिम अप एंड देन फ्रॉम देयर फोर्थ पाकिस्तान टीम से ही पिक हो गया। आई एम ऑल फॉर इट because the special talent, but then it depends on talent how to improve. Improve means अब मैं अगर हूँ हारिस की जगह इस वर्ल्ड कप के बाद, जो मुझे टाइम मिले, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया पे टेस्ट क्रिकेट में पिक होता हूँ या नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो आई विल बी प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट हेयर, जस्ट कि मुझे पीसीबी ना कहे, मुझे खुद शौक होना चाहिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। एक ऐड करूँगा यहाँ पे, देखें हारिस को जो जब उस टाइम पे ये आया था तो उस वक्त मैंने देखा कि ये इवन T20 क्रिकेट में जब ये ब्रांड न्यू बॉल करता है तो इसका पहले जब वो जिस तरह हम देख रहे हैं वाइड बॉल के 2 या 3 ओवर ही स्विंग हो रहा है यहाँ पे दोनों तरफ से, 6ठे ओवर के बाद मोस्टली हमने देखा है बॉल स्विंग नहीं होता, तो उसमें इसका बड़ा अच्छा आउट स्विंग होता था और ये नया बॉल करता था, नया बॉल इसको कराते थे। बट प्रॉब्लम इज़ कि जब वो स्विंग ख़त्म हो जाती है इनिशियल जो नए बॉल की कन्वेंशनल स्विंग 3रे ओवर के बाद, देन ही बिकम्स वेरी इजी इन दैट। वो 2 फील्डर की जो रिस्ट्रिक्शन है, बैक ऑफ लेंथ, वो गेंद वहाँ पे करता है, उसकी लेंथ ऐसी है वहाँ पे, वो जब करता है तो बैट्समैन के लिए बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली ये बैक फुट के शॉट जो हमने अफगानिस्तान। बट अगेन एट दिस लेवल, एट दिस इंटरनेशनल क्रिकेट, बीइंग अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन और बॉलर, यू विल बी एबल टू कंट्रोल दैट, solve that problem by now. अगर क्रॉस द सीम भी करनी है तो विद इन द स्टंप्स खत्म करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी लाइन आप उसको चेंज करते हैं और विकेट टू विकेट आप वहाँ पे फिनिश करें बॉल। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे थे। उसामा मीर, क्या वो आज रहेंगे या इफ्तिखार उनको रिप्लेस करेंगे? व्हाट आर योर थॉट्स? नहीं, मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में फिंगर स्पिनर बहुत इम्पोर्टेंट है। नवाज़, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि नवाज़ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। नवाज़ अगर ठीक है, बुखार की वजह से पिछला मैच नहीं खेले, और चेन्नई में हमने देखा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा भी खेले हैं, इवन सेंटनर जब खेले हैं तो उनको हेल्प मिली है, और इतना आसान नहीं है। इवन मोहम्मद नबी ने यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। विकेट टू विकेट जब आप मार के बॉल करते हैं, थोड़ी पेस पे नेचुरल वेरिएशन मिलती है और इतना आसान नहीं होता उसको मारना, क्योंकि आपको पता है यार बॉल सीधा भी रहेगा, यहाँ से ग्रिप भी कर सकता है, तो आप इफेक्टिव हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक चेंज ये होगी, जैसे पाकिस्तान थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका बेहतर होगा और इनको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्विंटन को अगर आउट कर लेता है पाकिस्तान ऊपर से, फिर मिडिल ऑर्डर में सारे राइट हैंडर हैं, तो नवाज could be very effective. All right, with that we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back there's more on the other side. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airwise app, and we're getting ready for the Pakistan versus South Africa game. Question, हम खैर पाकिस्तान की बात कर रहे थे. Any other changes expected there? Because हम सुन तो बहुत सारी चीजें रहे हैं, जिस तरह वसीम ने पहले भी कहा, but are we expecting any other changes? So I've heard Wasim Jr. comes in for Hassan Ali. Yes. So will he ball the new ball? That's the only option. Yeah. Will he ball the new ball? I don't know. Either him or Haris, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ओपनर हैं, अगर नवाज खेलते हैं तो आई डोंट नो वो रिस्क लेना चाहिए या नहीं। बट एक स्टार्ट में एक चांस आप ले सकते हैं ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट। क्विंटन डिकॉक 2 दफा आउट हो चुका ऑफ स्पिनर्स पे शुरू पे, अभी तो चांस लिया जा सकता है, बिल्कुल, व्हाई नॉट। Especially when the threat is so strong, maybe a chance can be taken. मोहम्मद अगर खेल रहे हैं तो इसका मतलब है he is also struggling, तो वो भी ये नहीं होगा कि ऑफ स्पिनर के पीछे ही पड़ जाएंगे, तो ये भी दिस चांस आल्सो कैन बी टेकन इन टुडेस गेम। If Bouma comes in, then who goes out? Hendricks goes out? Yes, of course. Reza Hendricks. How do this is going to be? नहीं, हमने देखा था जो पहले मैच में हेंड्रिक्स ने रन किए, उसके बाद बहुमा ने मे बी स्टेप डाउन किया था या तबीयत खराब थी, नेक्स्ट मैच वो नहीं खेले थे, ये देखते हुए कि ये फॉर्म में,
तो अब उनके पास तो चांस है, अब उसने पिछले मैच में रन नहीं किए तो हम गेस कर रहे हैं ना कि जी, शायद वो बिल्कुल। wasn't 100% fit. तो बट वो पिछले मैच में रन नहीं किया, तो वो कप्तान तो फिर ये अगर सही है तो खेलेगा। ये तो होगी ना बॉलिंग स्ट्रेटजी। वसीम जूनियर आए कि क्या वो नए गेंद करेंगे, इफ्तिखार से करवाया जाए डिकॉक के लिए। व्हाट अबाउट द टैक्टिक्स फ्रॉम द बैटिंग साइड, बैटिंग ऑर्डर, बिकॉज इफ्तिखार इज द ओनली जेन्युइन हिटर दैट वी हैव ऑन दिस लाइनअप। डज ही गो अप द ऑर्डर? डू वी उसको कहीं ऊपर भेजें क्या? व्हाट डू यू गाइस? उसको एक रोल दिया हुआ है आप लोगों ने, फिनिशर का, पिंच हिटर का, सिक्सेस। सो फार इन दिस वर्ल्ड कप लुक्स लाइक पाकिस्तान से वही एक बंदा छक्के मार सकता है। सो ही इज गॉट दिस स्पेसिफिक रोल बैटिंग एट 5-6, सो ही शुड स्टे देयर। और वो भी इज नो पॉइंट गेटिंग पैनिक। आई थिंक आज अगर वो सक्सेसफुल होगा तो चांस उसमें यही है कि शम्सी ना खेले, क्योंकि स्पिनर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं वो भी, इफ्तिखार भी। फिर जाके मिन्नत कर लेने साउथ अफ्रीका में पाना शमशी ना खड़ाना। मेरा ख्याल है कि अगर आज कोई सेंसिबल डिसीजन साउथ अफ्रीका की तरफ से होना चाहिए तो शम्सी को भी खिलाना चाहिए उनको। कोई मगर वो मनी कोटसी भी आउट कर रहा है हर मैच कर तो रहे बिल्कुल कर। बट ही माइट गेट ड्रॉप टुडे। दैट्स ओके, हॉर्सेस फॉर कॉसेस। एक चीज़ और है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मलिक नोज जो वी आर नॉट श्योर अबाउट हिज फिटनेस और करंट फॉर्म भी ऐसी नहीं है, लेकिन फ्रॉम मजर के हसन अली इज आउट। हसन अली इज आउट। मैं फ़खर की बात कर रहा हूँ। फ़खर का जो रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि वो बॉलिंग जिस तरह की उनकी फास्ट बॉलिंग है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका भी लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी वहाँ पे भी रन्स किए, फिर जहाँ पे भी वो खेले हैं उन्होंने हमेशा परफॉर्म। में भी वो जो हम इफ्तिखार वाली बात कर रहे हैं कि एक ही हमारे पास ऐसा बैट्समैन है जो प्रेशर डालता है, हिटिंग करता है, या he'll come for इमामुल हक। maybe we are not sure, okay। अच्छा, इसका भी नहीं पता। ये आपने भी वसीम पॉइंट किया कि it seems like इफ्तिखार is the only one जो कि सिक्सेस लगा सकता है पाकिस्तान की साइड से। Let's talk about in comparison, इफ्तिखार को ले लेते हैं और दूसरी साइड पे आप let's take Klassen for instance. What gives these two batsmen the strength to hit these big sixes? I think they have worked hard और उन्होंने ये देखा कि हमारा जो टर्न है वो किन नंबर्स पे आती है। आया वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ये ऐसा नंबर है कि सिर्फ आपको बड़ी हिट्स नहीं मारनी है, आपको यहाँ पे इनिंग्स भी बनानी पड़ेगी अगर ऊपर से जल्दी आउट हो गए। हाँ, द ओनली डिफरेंस इज क्लासन जो है वो स्पिनर्स और पेसर्स के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा खेलते हैं। इफ्तिखार जो है उनका भी ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा जब रिस्ट स्पिनर आता है सो ही स्ट्रगल्स। ये थोड़ा सा एक ऐसा एलिमेंट है, बट दैट आल्सो कैन बी कवर्ड सेंडिंग हिम अप द ऑर्डर। वो ये है कि जब आपका पार्टनर खेल रहा है वहाँ पे तो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखें दुनिया में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो हर बंदे को अच्छा खेलते हैं, स्पिन को भी और पेस को भी। लेकिन ये है कि जो आपका पार्टनर है या जो आपका थिंक टैंक है उसको ऐसी चीज़ के साथ आना है कि जो आपका बेस्ट प्लेयर है उन नंबर्स पे उसको ऐसी सिचुएशन दी जाए कि वो अपना बेस्ट दे सके। What gives them the elevation, Misbah? What gives them the elevation to hit those big sixes, especially the South African batters? मेरे ख्याल में जो दोनों में मैं आप इफ्तिखार की भी बात करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप लेंथ बॉल और शॉर्ट बॉल को कितना अच्छा खेलते हैं, आपके पास टाइम कितना है। तो जैसे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है, लेंथ बॉल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। पीछे अगर बॉल किया है, एक तो वो उन पिचेस पे रिएक्शन टाइम है उनका, वो बाउंसी पिचेस पे खेले हैं, और फॉर सम हाउ ये जितने भी हमारे KPK के बैट्समैन हैं वहाँ से जितने भी आते हैं, बिकॉज पेशावर मुझे लगता है वहाँ की जो कंडीशंस हैं, पिचेस हैं, फास्ट बॉलर्स भी ज़्यादा हैं, वो दे आर गुड, कट पुल उनकी अच्छी है। रिजवान को देख लें, उससे पहले भी जितने भी प्लेयर वहाँ से आते हैं वो ये बैक फुट पे अच्छा खेलते हैं। सेम गोज़ इफ्तिखार, शॉर्ट बॉल इशू नहीं है, और जो शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलता है और पेस को अच्छा खेलता है फिर फास्ट बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब फॉरेन टीम्स आते हैं, वो आपको लेंथ बॉल पे फंसाते हैं, बाउंसर्स पे फंसाते हैं, स्लो बाउंसर्स करते हैं, और ये इफ्तिखार की स्ट्रेंथ है बिकॉज ऑफ हिज बैकलिफ्ट, उसकी स्विंग जो है उसको वो बहुत। How would you compare his backlift and swing to the South African batters like Klassen, the backlift and swing? It's a kind of a different technique. Different technique है। क्लासन को अगर आप देखें, उधर why don't you give us a demo please? Show us so that is a clear cut. Especially शलवार कमीज मैसेज चला जाएगा। मैंने करना ही सी। ये पहले दिखाने से पहले ना एक जुमा भी आज जुमा पढ़ा दिया। देखिए इफ्तिखार को हमने देखा है, क्लासन को। क्लासन बेसिकली
मूव कम करता है, वो जो अपनी जो जिस भी गार्ड पे खड़ा है वो वहीं पे खड़ा है, और बहुत कम है कि वो स्टंप्स कवर करके सिर्फ एक साइड नहीं देखता। ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग देयर, यहीं पे वो तैयार होता है, और फिर उसको बॉल लेंथ बॉल मिलती है, यहाँ मारता है, सीधा मारता है, बाहर मिलती है तो यहाँ मारता है। मोस्टली सारे एरियाज जो हैं वो दोनों तरफ खेलने जाता है, जबकि इफ्तिखार बेसिकली कोशिश करता है कि मैं पूरा स्टंप्स को कवर करके यहाँ आ जाऊँ, एंड देन जो भी उसके बीच में बॉल थोड़ा सा लेंथ बॉल आता है, ही गोज़ देयर, और जो गेंद थोड़ा सा इधर मिलता है उसको वो स्ट्रेट जाता है। यहाँ उस तरह उतना नहीं खेलता है जितना क्लासन खेलता है। सो दैट्स हिज स्ट्रेंथ बेसिकली। ये डिफरेंस है दोनों में कि वो बॉल को अपने लाइन वो चेंज करके बॉडी के अंदर लेता है, क्लासन अपनी जगह पे खड़ा रहता है, यहाँ वाले बॉल को इधर वो हर तरफ खेलता है। सो दैट्स बेसिकली द डिफरेंस। वन क्वेश्चन, मॉडर्न क्रिकेट में अब देखो जैसे क्रीज के अंदर खड़े हो आप, मोस्टली बैट्समैन जब हिटिंग करते हैं, जब 90s में थे तो क्रीज के बाहर या रूम देते थे, अब ये क्रीज के अंदर ही खड़े रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल लेंथ क्रिएट करते हैं, स्पेशली जो एंड के ओवर्स आप खेलते हैं। अब इफ्तिखार भी जब खेलता है तो वो अगर फर्स्ट करें लेग स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच में अगर उसने गार्ड लिया हुआ है तो वो जब इस तरफ को जाता है तो वो भी डीप जाता है क्रीज में, बिकॉज उनको पता है कि बॉलर का वो जो यॉर्कर लेंथ बॉल है उसको डिस्टर्ब करना है, और लेंथ भी अगर वो करता है तो आपको वो गुड लेंथ है जहाँ से आप ये शॉट थोड़ा सा आपका मुश्किल होता है। जब आप यहाँ जाते हैं आपको वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, लेंथ थोड़ी सी पीछे। इसमें एक और चीज़ भी है वसीम भाई, जो आपने क्वेश्चन किया कि क्रीज का इस्तेमाल, तो 90s में ये होता था कि ओडीआई क्रिकेट में बाउंसर नहीं था। अब 2000 में बाउंसर आया, तो इसीलिए क्लासन को जो एडवांटेज होता है, जैसे मिसबा भाई ने एक्सप्लेन किया कि वो अपनी पहले ही ना इनिशियल मूवमेंट करके खड़ा हो जाता है, फिर वो वेट करता है कि मुझे फुल बॉल आएगा या शॉर्ट बॉल आएगा, आउटसाइड ऑफ स्टंप आएगा, मेरे पैड्स की तरफ आएगा, स्टंप्स में आएगा, वो रेडी है। अब वो जहाँ पे भी बॉल आएगा, और उसकी वो वाहिद आदमी है जिसकी दोनों चीज़ें बड़ी तेज़ हैं, टांगे भी और हाथ भी। इफ्तिखार का सिर्फ ये है कि उसके हाथ बड़े अच्छे चलते हैं, टांगे उस तरह क्लासन से अगर आप कंपेयर करेंगे या कंपैरिजन करेंगे तो उस तरह तेज़ नहीं है। तो इसीलिए जो है वो क्लासन का जो ये रेडी पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। ये मिसबा जो क्लासन की अभी जिस तरह बात कर रहे थे हैंड पोजीशन, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि वो काफ़ी जो एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स है वो भी बड़ी सॉलिड आती है, ज़रा वो और मुझे लगता है कि ये जैसे हमारे क्रिकेटर्स में भी हफीज़ ने चेंज की अपनी बैट स्विंग, ये गॉल्फ खेलने के बाद काफ़ी हद तक ये बेसिकली जिस तरह उस पर आप खड़े होते हैं यूँ, और ये मलिक ने भी उस दिन कहा है कि सिर्फ यहाँ से करके आप स्विंग इस तरह करते हैं, ये मोस्टली इनकी स्विंग सबकी इस तरह की है, और वो इनको जो मोमेंटम पीछे से आता है और फिर जो स्ट्रेंथ मिलती है, जब एक्सटेंशन आपकी आर्म्स की होगी, मैक्सिमम पावर आपकी उस शॉट में ट्रांसफ़र होगी। ज़ाहिर है मेरे अगर बाजू बंद है तो मैं पूरी पावर जनरेट ही नहीं कर सकता। तो ये एक्सटेंशन जब आती है और पूरा आप उसको मिडल करते हैं, चाहे वो पीछे है बॉल या आगे है, तो दैट गोज़ लॉन्ग, उसमें पूरी आपकी पावर होती है, रेंज हिटिंग जैसे आप गोल्फ में करते हैं। एक और चीज़ है, सबसे जो अच्छी चीज़ है क्लासन में वो ये है कि कुछ बैटर्स जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं, जो ग्राउंड की डिमेंशन है उसको देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार इस तरफ बड़ी बाउंड्री है, इस तरफ छोटी बाउंड्री है, मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा, वो ये चीज़ नहीं सोचते, वो बैक करते हैं। तो एज अ बैटर आपको अपने आप को बैक करना है। की दसी सी कि अगेंस्ट द विंड मारो छिक्का, तो जिस साइड बड़ी ग्राउंड है उधर मारो। I'm just kidding. लेकिन इफ्तिखार की बात अगर हम करते हैं तो इफ्तिखार स्ट्रॉन्ग है, इस तरफ भी खेलता है, बट ही प्रेफर्स कि मैं बॉल को बॉडी के अंदर। Alright, with that we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं A Sports 10 Sports in the ARY ऐप, और हम अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। चेन्नई आपको लेकर जाना है जहां पर पाकिस्तान का मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। आइए दिखाते हैं आपको मैच फीचर। All right, sorry, we're having a little bit of a technical issue here, but we're going to try to bring the match feature. मैच कर रहे हैं, ये दिखाते हैं मैच फीचर आपको। There you have it. Good to see the boys in green getting all set. एक सवाल है मेरा वसीम दो,
So Mickey Arthur is the director. Cricket director. Yes. So who the head coach is? Bradburn. So what? There wasn't Bradburn this guy. Who was this guy? That's what I'm thinking. बैटिंग कोच ये बैटिंग कोच है जो मोहम्मद यूसुफ की जगह आया था, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए और दुनिया के, और दुनिया इनको रिकॉग्नाइज करती है, फिर इनको लेके आए हैं. I'm probably he's doing a great job, but you see at that level you need somebody with experience in India. पाकिस्तान की बैटिंग ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस की हैं. जितनी देर वो रहे हैं, यूनुस खान रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ रहे हैं, पाकिस्तान ने बैटिंग में तो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स किए हैं. बट I don't know. All right, surprised me as well. Surprised me. Huh? Baffled? Not baffled, but surprised. Baffled would be a little stronger a word. A little surprised, maybe yes, but you know what, Wasim? It's time for your favorite subject. Yes. Time to go take a look at the pitch, brought to you by Onic. Well, there you have it. Brought to you by Onic. The pitch report. Interesting. Sari baat tact ki hai. What should be the tactic here? Yeah, it's the best pitch report we've heard so far in this World Cup. Precise, to the point, and tactically as well. He said wickets ne zyada change nahi karna. Look, it looks like beautifully rolled in, nice color to it, maybe a bit of sheen there as well, and it looks even Stevens as we call it, hardly any grass. And if anything, probably anything, is going to probably get better batting second with the dew factor in it. Dew factor, and also Wasim bhai, they should also add, particularly they have added one thing about this venue, कि यहाँ पे सबसे लोएस्ट है एवरेज जो है so far. लेकिन वो एक चीज़ ऐड नहीं करते कि यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है पहले बैटिंग करने का, पर्टिकुलरली इन दिस वेन्यू. जैसे आप 30 ओवर्स में जाते हैं बैटिंग फर्स्ट, तो उसमें वो दोनों बॉल्स बहुत जल्दी पुराने होते हैं. ये कोई भी एक्सपर्ट नहीं बात करता इस वेन्यू के बारे में, जो भी आते हैं. तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक मोमेंटम में रन्स बना रहे हैं एज अ टीम, तो जैसे 30 ओवर्स में गेम जाती है तो दोनों साइड के जो बॉल्स हैं वो पुराने होते हैं. बट बैटर्स वो इसलिए भी कम स्कोर हो रहे हैं कि वो सेम मोमेंटम में खेलना चाहते हैं अगेंस्ट द पुराने बॉल. सॉफ्ट भी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. देखें तो उसका जो लेदर है वो भी उसके भी जो छिल जाता है. सॉफ्टर द बॉल हार्डर टू हिट, राइट, हार्डर टू स्कोर. तो उसमें ये होता है कि आपको कन्वेंशनल क्रिकेट थोड़ी खेलनी पड़ती है. आप सेम मोमेंटम से, जिसको हम कहते हैं बाउंड्री के साथ खेल रहे हैं. तो आई गेस इनको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, पर्टिकुलरली जिस भी वेन्यू की वो पिच रिपोर्ट देते हैं, बट ओवरऑल उनको कंडीशंस का भी जो है वो हाईलाइट करनी चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए. पिच रिपोर्ट का टाइमिंग होता है, you have to kind of बिल्कुल 2 मिनट just over a minute, so kind उसे of ढाई करके थोड़ा और एक्सप्लेन कर लें. नहीं, वो काम आपका है और हमारा है ना. यहाँ पर उन्होंने दे दी पिच रिपोर्ट, अब आपने एक अच्छी बात बता दी, हमने सुन ली सारी बात इन्होंने अच्छी की है ना, बहुत जबरदस्त बात की है मिसबाह, अच्छी बात की है ना मिसबाह. मलिक ने अच्छी बात की है, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको जुमले के बीच में वैसे ही रोकना पड़ेगा. because I got to go take a break. We'll come back and then we'll talk to Misbah on this. Welcome back to the Pavilion. Break पे जाने से पहले हमने pitch report के बारे से बात कर रहे थे. Misbah, you wanted to add something what Shoaib said about this pitch and the dimensions and the two balls getting old. दोनों एंड से 30th ओवर में उसका एविडेंस जो हमें नज़र आ रहा है इस वर्ल्ड कप में कि 4 मैचेस में से 3 जो है वो चेजिंग टीम ने जीता. ओनली न्यूजीलैंड डिफेंडेड 288 अफगानिस्तान के अगेंस्ट. बाकी जितने भी 3 मैच हुए, ऑस्ट्रेलिया 199, इंडिया ने चेज़ कर लिया, वो के ऊपर से उनको मुश्किल आई. फिर न्यूजीलैंड ने चेज़ किया 245 बांग्लादेश के अगेंस्ट. पाकिस्तान 282 अफगानिस्तान ने चेज़ किया. तो वो जो चीज़ मलिक कह रहा है कि बॉल फर्स्ट इनिंग में जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, रिवर्स भी ज़्यादा होता है और उसको उस तरीके से हिट मारना, ट्रैवल भी कम करता है. वो एक फैक्टर ज़रूर है इस वेन्यू पे जो नज़र आ रहा है क्लियरली. So you think win the toss and do what? आई थिंक जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जो टीमें खेल रही हैं, पाकिस्तान क्लियरली एज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसी भी टीम को अगर वो पहले बैटिंग करे, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके वो एक डिफरेंट टीम बन जाती है बैटिंग में भी, और उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है. All right. With that we have Shahid Hashmi साहब who is in Chennai and talking to Rizwan. Let's listen in. पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से एक बहुत अहम मुकाबला है. मस्ट विन स्टेज पे पाकिस्तान की टीम आई हुई है. अगले 4 मैच जीते हैं, सेमीफाइनल के लिए पहुंचे हैं. बड़ा यकीन है इस टीम में, बड़ी अच्छी तैयारियां की हैं. रिजवान, कितना बिलीफ है, कितना यकीन है कि यहाँ से 4 मैच जीतेंगे और सेमीफाइनल में जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, बिलीव तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से हमारी पूरी कौम का हम पे रहा है और हमारे खुद भी काफ़ी बिलीव है.
क्योंकि अगर आप देख लें हमारे ज़मानों से ऐसे वर्ल्ड कप्स होते आ रहे हैं और ऐसा हमारे साथ होता रहता है, पता नहीं अल्लाह आलम क्यों वजह क्या है, वजह देखनी पड़ेगी इसके लिए मुकम्मल तरीके से। मगर हम बिलीव काफ़ी ज़्यादा है कल क्योंकि हमारा जो 2 दिन का कैंप था तो उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे लड़कों में अजीब सी क्या कहते हैं, किस बात को भी घूम रही थी कि इंशाल्लाह हमें लग रहा है जीत रहे हैं। और हमें जो चीज़ें हमें जो कमी फील हो रही थी जिस डिपार्टमेंट में जिस जॉब में हमें लग रहा था कि यार हमें कमी पेशी है, उसमें लड़कों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया। बड़ा हेल्पलेस सी लग रही थी टीम, बड़ा वन साइडेड सा लॉस हो गया 8 विकेटों से अफगानिस्तान का। वो शिकस्त कितनी भुलाई और क्या हुआ वहाँ पे? देखिए ऐसी शिकस्त आप बड़ी मुश्किल से भूलते हैं, ये आसान बात नहीं है कि आप इतना आसानी से भूल जाएं। और ऊपर से इसी टूर्नामेंट में आप खेल रहे हैं, टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो फिर इंसान के बारे में सोच सकता है कि कैसे भुलाया जा सकता है, मगर भूलना इतना आसान काम नहीं है। मगर बहरहाल एज ए प्रोफेशनल आपको चीज़ से सीखना पड़ेगा कि उसमें हमने क्या गलतियाँ की है और आगे कैसे लेके जाना है। तो उस चीज़ को अब मैं ये कह सकता हूँ कि बदकिस्मती से कि उसी ग्राउंड में हमारा मैच कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार कम से कम इस ग्राउंड से हम निकल जाते हैं। वो मैच हुआ, हार गए, मगर बहरहाल एज ए प्रोफेशनल आपको चीज़ों से निकलना पड़ता है, क्योंकि आप इतने बड़े स्टेज पे खेलते इतने बड़े मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को आना चाहिए आपके पास इन चीज़ों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को काफ़ी साइड पर रखा हुआ है, मगर उससे सीखने की कोशिश की है कि उससे सीखे और आज इस साल आप यहाँ डिलीवर करें। आप विकेट के पीछे से देखते हैं बॉलिंग को, रेड हॉट बॉलिंग कह रहे थे एशिया कप से पहले, इस बॉलिंग को क्या हुआ इस वर्ल्ड कप में? देखिए जी, शायद भाई हकीकत यही है कि सिर्फ बॉलिंग को मैं ये समझता हूँ मैं पर्सनली कि बॉलर्स के जो अच्छे बॉल्स हैं, हमारी फील्डिंग थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सपोज हो गई है मुझे लगता है। क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि यार बॉलर्स के अच्छे बॉल्स पे भी हम रन्स दे रहे हैं, तो आप फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार हम अगर फील्डिंग में 20 से 25 रन हम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप किसी के उसके खाते में 20 से 15 रन डाल सकते हो। तो अगर वो 40 पे दे रहे हैं तो 25 वो कम से कम वो 55 पे पहुंच जाता है, 52 पे पहुंच जाता है। तो इससे सबको लग रहा है कि यार हमको यहीं पे, मगर मुझे लग रहा है पर्सनली अगर हमारी फील्डिंग और स्टैंडर्ड आ गई, मैं तो इस टाइम कम देखिए हॉनेस्टली कह सकते हैं कि फील्डिंग जो हमारी स्टैंडर्ड है, मैं तो अपने जो बाकी टीम है जो हम समझ रहे हैं कि यार नीदरलैंड नीचे या बांग्लादेश या क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से उसकी फील्डिंग हमसे इस टाइम बहुत बेस्ट है। हमें इन चीज़ों में काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा, जो हकीकत मैं बताऊँ तो ये हम सब मान रहे हैं, नहीं कि हम नहीं मान रहे। मैं भी इसमें एज ए टीम शामिल है कि हम सारी इस बात को मान रहे हैं कि हमारी फील्डिंग और स्टैंडर्ड की नहीं रही, इसमें कुछ कमी बेशी है, मगर 2-3 दिन से इस पर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उस मैच के बाद काफ़ी काम कर रहे हैं। राइट, देयर यू हैव इट, रिजवान देयर विद शाहिद हाशमी साहब। और उसके साथ ही लेते हैं एक वक्फा। जो गुफ्तगू अभी उन्होंने की है इस पर बात करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान की फील्डिंग के हवाले से जो रिजवान ने बोला है। बट आफ्टर दिस ब्रेक, वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द AIY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. We are going to be heading to Chennai, where Pakistan is going to clash with South Africa. पिच रिपोर्ट हम जो है वो ला चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं, और बात कर रहे थे हम चेंजेस के हवाले से भी और मुख्तलिफ पहलुओं पे। You wanted to add something, Misbah, to the dimension of the discussion? आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए पहले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है वट एवर दे डू, बैट फर्स्ट अगर करते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम को देखते हुए 300 प्लस, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन। और अगर आप बॉलिंग फर्स्ट करते हैं प्लस तो 600 भी होता है, 400 भी होता है, 500 भी होता है, मिनिमम 300, मैक्सिमम 400 कर लो। एंड इफ यू बॉल फर्स्ट, आई थिंक मैक्सिमम 270 से ऊपर नहीं होना है। अच्छा, लेट मी ब्रिंग इनटू द कन्वर्सेशन। अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले रिजवान की बात सुनी। रिजवान ने कहा कि जी हमारी शायद बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी बॉलों पे भी हम रन कंसीड कर रहे हैं, तो हमारी फील्डिंग थोड़ी एक्सपोज हो गई है। योर थॉट्स ऑन दैट वसीम? थोड़ा स्पॉट ऑन, कसरे नफ्सी से काम लिया थोड़ा, जो उसने कहा थोड़ी एक्सपोज हो गई। फील्डिंग looked quite ordinary so far in this World Cup. उसकी क्या वजह है? We're a good fielding unit. unit. They look tired, they look fatigued to me. And look, one-day cricket is a tough job. It's not an easy job. Okay, one off missed fields, drop catches हो सकते हैं, but not 4-5 गेंदें in a row. दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यू कैन नॉट मेक अप एनीथिंग इन वन डे। अगर हम आप कोशिश कर रहे हैं कि हम फील्ड बेहतर कर लें और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, यू ऑलवेज लुक टायर्ड ऑन द फील्ड। जैसे रिजवान ने कहा कि पिछले 2 दिन में हमने काफी मेहनत की है। पिछले मैच से भी पहले क्या था? टोस पे कुछ इंप्रूव नहीं होता। बट इवन इन द लास्ट मैच ऑन टोस पे अपने आप ये जितनी गर्मी है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी है, आप जितनी ज़्यादा मैच से पहले एक्सर्शन करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बेसिकली कॉस्ट यू इन द गेम। आप एक दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं, हमने पहले भी बात की थी, यहाँ रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश होना ड्यूरिंग द गेम। इम्प्रूवमेंट बहुत छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनमें प्रोफेशनलिज्म कम है। प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपको ये सिखाता है कि हाउ टू लुक आफ्टर योरसेल्फ।
तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है। आप फील्डिंग ले लें, फिजिकल फिटनेस ले लें, ये हाउ टू रिकवर, और अगर आप सीरीज़ में जा रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि प्रोफेशनलिज्म जो है ना उस पर काम होने की ज़रूरत है। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द की हियर। नाउ ये बात मिसबा ने बड़ी सही की मोइन कि ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता सब कुछ ना, अब इट्स टू लेट फॉर दैट। सो हमें ओके सॉरी गाइस, आई एम गोइंग टू वी हैव टू कट अक्रॉस टू द ग्राउंड नाउ, बोथ द कैप्टन्स आर वॉकिंग आउट, टाइम फॉर अ फ्लिप। और खबर चेन्नई से ये है, बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीम्स में चेंजेस हैं, बट लेट्स आस्क शोएब, स्टार्ट विद यू, कि आपने कहा कि यही करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। देखिए अब ये चीज़ आ गई है कि साउथ अफ्रीका लॉस्ट 1 गेम इन दिस वर्ल्ड कप, जिसमें उन्होंने सेकंड बैटिंग की थी। आज भी वो चेस करेंगे। पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग और फील्डिंग स्ट्रगल कर रही है, उनको वो सेकंड करना है। अब देखते हैं कि वो दोनों टीम्स में से बेहतर कौन करता है। आज तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे आज का मैच जीतने के। राइट, एनी सरप्राइजेस फॉर द चेंजेस वसीम फॉर यू? No, I think they were on the cards. Hassan Ali had a fever. Obviously, Mohammad Wasim is come. I think that's what I've heard. अभी टीमें आपको दिखाते हैं. जी. And then उसामा की जगह नवाज को डाला है. And batting order वही है. Good toss to win, great toss to win. That's the first battle won. Yes. This is not the only battle. There's a battle within the battle. Yeah. अब batting में, like Misbah said, even Shoaib Malik, Moin, कि 300 plus would be ideal for them to chase on this pitch. And remember guys, अगर मैं 280-300 कहता हूँ या हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि 20 एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे because of the due factor. Yeah, that is. Shamsi comes in, Misbah. How does that affect the batting for Pakistan? देखें वो सक्सेसफुल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो आने ही आने थे, और स्पेशली इन कंडीशंस में, और थोड़ा उनको फर्स्ट इनिंग की अगर बॉलिंग मिलेगी तो वो एक मेन बॉलर है। पाकिस्तान को अच्छा खेलना है उनको, अगर पाकिस्तान ने अच्छा टोटल पोस्ट करना है, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम देखें वी स्ट्रगल अगेंस्ट दीज लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स। हमने नूर के अगेंस्ट भी उस तरीके से नहीं खेल सके, फिर कुलदीप के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। प्रीवियसली अगर देखें तो इवन शम्सी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तानी बैटर्स को यहाँ पे मेरे ख़्याल में लीड लेनी होगी। ये बड़े ही क्रूशियल इन द मिडल ओवर्स होंगे, जो उनके लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं महाराज, उनको और इनको स्पेशली व्हेन दे आर बॉलिंग फर्स्ट हमें अच्छा खेलना है, अगर हम सोच रहे हैं कि हमने 300 करना है। Right. So very good change by South Africa, and let's see how Pakistan goes. और सबसे पहले तो ये प्लेइंग 11 लेकर आते हैं पाकिस्तान की। वसीम, टेक अस थ्रू प्लीज। जी बिल्कुल, same openers. Abdullah is in good nick. Imam has to fire today. Babar got 74 in the previous game. Rizwan got some runs in this World Cup. Saud is getting run a ball 30s. Iftikhar looked good for a little while early previous game. Shadab as a leg spinner. Nawaz making a comeback. And then of course 3 paces, Shaheen, Mohammad Wasim making a comeback instead of Hassan Ali, who's not well, and of course Haris Rauf. So looks a good side. Shoaib, South Africa. Bauma's back as captain. Quinton de Kock, Van der Dusen, Makram, Klaassen, Miller, Jensen, Kudsi, Maharaj, Shamsi जो second उनकी change है, और नगीदी जो third वाली change है उनकी विलियम्स की जगह वापस आए हैं। बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, बॉलिंग भी अंडर लाइट्स जो है आज उनको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आज डे में बॉलिंग करेंगे तो बॉलिंग कैन बी एक्सपोज, बट ओवरऑल दे गॉट ऑल कवर्ड। अगर हम 11 को देखते हैं, और बहुत सारे इनके एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टीम्स इनके बहुत सारे बॉलर्स और बैटर्स जो हैं वो इन फॉर्म है। सो लेकिन आज ये है कि चेस करना है, सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड क्वेश्चन. Good question. It is definitely going to be something challenging for South Africa. With that, we're going to take a break right here in the pavilion. When we come back, we're going to be talking a little bit more and we'll be closer to the action. Welcome back to the pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam और आप देख रहे हैं Sports in the Airways ऐप. चेन्नई से खबर, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. South Africa bowlers will be bowling in this weather, in this heat, humidity. Does that take a toll on them, Misbah? ज़रूर, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस टाइम पे. आप एक दफ़ा जब 3.5 घंटे बल्कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा इस फील्ड में रहते हैं तो देन यू सफ़र. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में आपने देखा था कि क्या हालत थी इंग्लैंड की उस मैच में. पहले बॉलिंग की उन्होंने, गो के वहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी शायद यहाँ से ज़्यादा हो, बट यहाँ पे भी ठीक ठाक गर्मी होती है. इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ होगी. आज देखते हैं विकेट कीपिंग कौन करता है, क्लासन या
Quinton. Yeah, de Kock, sorry. Yeah, sorry. Well, let's see. The captain is back. Things have changed in both teams. We have some change, but it's time for the expert predictions brought to you by Express Power. Right, Ji? Expert predictions. Shoaib. South Africa. South Africa for Shoaib Malik. Moin? Pakistan. Pakistan for Wasim. Heart is saying Pakistan, my mind is saying South Africa, so I'll stick with South Africa. All right, South Africa. And for you, Misbah? Pakistan. Pakistan, right. We have 2 for South Africa, 2 for Pakistan. And those are your expert predictions brought to you by Express Power. And it's time for Player to Watch Out For, brought to you by Ufone. आपने ना एक जुगत खानी है. आपने कहा हार्ट इज सेइंग पाकिस्तान, Yeah. माइंड इज सेइंग साउथ अफ्रीका. ये अगर हम में से किसी ने कहा होता आपने कहना बाजूकी कह रहे थे. मोंडे क्या सीना पाया Not funny. I know, I'm kind of confused what's going on here. I have a segment to complete here. So let's start with you, Misbah. Player to watch out for. ये बैक कर रहे हैं बाबर आजम को आज. Babar Azam, well done. साइचे वाले ने मुझे बताया मेरे सामने बैठ के कि अच्छा. बाबर आजम आज. Skip. I'll go for, because they're bowling first, South African, and I reckon he'll trouble the Pakistani batsman. Tabrez. शमसी. Shamsi, Tabrez, Shamsi. All right, Moin? मैंने सितारों वालों से रब्ता किया था. उन्होंने कहा वो सितारे रात में निकलते हैं. फिर मैंने खुद ही हिसाब लगाया. हारिस रऊफ. Haris Rauf, nice. Good. It'll be great to see Haris Rauf fighting up today. कल रात को तो क्लाउडी था, कितने सारे निकल आए हैं. Shoaib Malik, एक आज रात में. बाजू क्या कह रहे हैं? वेंटर डूजन. Wender Duzen. Shoaib Malik के बाजू ने कहा है Wender Duzen. And those are your players to watch out for. Brought to you by Ufone. Straight up, Misbah, matchups जल्दी से आपको क्या लगता है हमारे ओपनिंग पेयर का मैचअप्स क्या बनते हैं इस वक्त विद साउथ अफ्रीकन बॉलिंग? देखें इनिशियली स्टार्ट हमने अच्छा करना है. पता नहीं तुसी कित्थों सवाल कढ़े अचानक. ये क्या मतलब? इसका क्या मतलब? वहाँ पे ना लंच आ गया. मैं लंच आज आया है. हमारे भाई हैं अरसलान, उनके घर से कड़ी पकौड़ा आया हुआ है. अब वो मैच वो वाला देख रहे थे. वो शो खत्म होगा, कड़ी पकौड़ा चावल के साथ खाने हैं, रोटी के साथ खाने हैं. वो कह रहे हैं मैच के मैच अब. Misbah defense, that question came out of nowhere. No, I was expecting some matchups. You guys are the experts. You're supposed to tell me that anyway. खाने के लिए आप लोगों को देने लगा मैं. We are gonna take you guys to the action. Let's see you guys mid break. We're going to now go to Chennai where Pakistan is all set to bat against South Africa. I'm going to take these naughty guys out and feed them something. See you after 50 overs.